جی باجی. میری بات سنیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سنت الجماعت میں جلسے ہوتے کہاں؟ آپ کون سے سیکٹ سے تعلق رکھتی ہیں؟ اہل سنت والجماعت میں کافی سیکٹ ہیں نا. میں سنی ہوں نہ، میں وہ گرین طوطے جسے کہتے ہیں میں وہ بھی نہیں ہوں، میں سنی ہوں، سنی جیسے ہوتے ہیں نارمل جو لوگ ہوتے ہیں وہ نارمل سننے کی ڈیفینیشن کیا لیکن ہوتی ہے؟ ان کی نارمل سنی میرے نزدیک تو دیکھیں ہم لوگ جہاں پہ رہتے تھے وہاں پر ایک سنیوں کی مسجد تھی، وہاں پہ میرے گھر والے جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، عید کی نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے، اور بس اس کے علاوہ اور نہ ہی میرے گھر میں ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ختم درود وہ حساب نہیں تھا، حالانکہ ہم اہل حدیثی ابھی نہیں تھے، اور باقی جو جیسے ہوتا ہے کہ جمعراتی اور آپ خود کو 40ویں وہ بھی مسلمان کہا نہیں ہے۔ کریں، آپ خود کو مسلمان کہا کریں، خود کو سنی نہ کہا کریں، خود کو نہ ہی کیوں کوئی سنی نہ کہا کیونکہ کروں؟ یہاں پر ایم ڈی کیوں یو میں بیٹھی سنی؟ ہوئی ہے نا باجی. آپ خود ایم کو ڈی یو کیوں میں آپ سنی نہ کہا کروں؟ یہاں پر سنی نہ نہیں کریں. آپ مجھے صرف ریزن دے دیں کہ میں اپنے آپ کو سنی کیوں نہ کہوں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سنی کسے کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا، میں نہ سنی کو سمجھتی ہوں، مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی کریکشن کروں۔ آپ کو صرف 2-3 چیزوں کو پتا ہے کہ ہری پگڑی والے جو طوطے والے جو آپ بول رہی ہیں، ویسے تو کسی کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی فقہ کو، میرے ابو کہتے ہوتے تھے، وہ صدیوں سے ہمارے دلوں میں یہی بستا ہے کہ یہ طوطے ہیں۔ غلط آپ دل سے نکال لینا. دیکھیں اتنی اچھا میسیجز دے رہی ہیں آپ سب لوگوں کو ایز اے مسلم دے رہی ہیں، تو یہ تھوڑی سی چیزیں بھی غلط نہ کریں. اچھا چلے سنیوں کی آپ ڈیفینیشن بتا دیں۔ میں سنیوں کی ڈیفینیشن ہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں باجی بات ایک منٹ یوکے بھائی، ایک منٹ باجی، آپ نے تو بولا ان کو طوطا تو ان کو برا لگا ہے، وہ اپنے آپ کو کتا بولتا ہے. وہ ایک منٹ یار، ایک منٹ یوکے بھائی، یوکے بھائی وہ اپنے آپ کو کتا بولتے ہیں، اس ٹائم آپ ان کو منع نہیں کرتے، وہ طوطا بول رہی تو آپ کو آپ کہہ رہے ہو ان کی ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہو. میں نے آپ کو بھی بولا کہ میں ان کی اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یار آپ اس ٹائم کیوں نہیں بولتے ان کو کہ بھائی اپنے آپ کو کتا نہ بولا کرو؟ وہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا بولتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. جو بھی اپنے آپ کو جو بولتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ تو نہیں بول سکتے نا. وہ بھائی ہرے طوطے، یہ کوئی طوطا کوئی برا کوئی لفظ تھوڑی ہے کوئی. میں اسی لیے اپنے آپ کو صرف سنی یار یہ بولتی گالی ہوں۔ بات ہے طلعت بھائی، یہ گالی بات ہے. میں صرف اتنی آپ کو بات بتاؤں گی کہ یہ تھوڑا عرصہ پہلے میں نے وہ جو ہے وہ کون ہے جو ان کا نام طارق مولانا نہیں مولانا طارق جمیل، وہ سنی ہے؟ اچھا، انہوں نے تھوڑے عرصہ پہلے جو بھی ہیں دیکھیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، تھوڑا عرصہ پہلے میں نے ان کا نا ایک بیان سنا، لوگوں نے بڑا لائک کیا ہوا، ملینز میں ویوز جاگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ میں نے کہ دوزخ اور جنت کا نقشہ کھینچا گیا۔ دوزخ کیا ہے جی؟ دوزخ میں تو جی چلو آگ ہی آگ ہے، تو یہ ہو تو وہ ہے، تو چلو جی دوزخ کا تو سمجھ آ گیا۔ اب جنت کا ان کا نقشہ سنیں۔ جنت میں ایسا نقشہ ہوگا کہ آپ دیکھتے سار پاگل ہو جاؤ گے، خوبصورت قسم کے درخت ہوں گے، خوبصورت قسم کے پہاڑ ہوں گے، خوبصورت قسم کے پھول ہوں گے۔ ایک مسلمان مرد کو 1000 اور 100 حوریں ملیں گی، اور ایک حور کے ساتھ اس کی سہاگ رات 10 سال کے برابر ہوگی۔ اور یار یہ سوچو کہ اگر جنت میں بھی تم لوگوں نے گند ہی کرنا ہے تو تم کیا مسلمانوں کو سکھا رہے ہو؟ باجی یہ بتائیں مجھے جنت میں حور ملے گی؟ یار ان کو کرنے دیں پیر بھائی، وہ ان کو واپس میں وہ یہ حوریں اور یہ دیکھیں جو ہے نا دوزخ اور جنت کا، جس نے اعمال برے کیے اس کو برائی ملے گی، اور جس نے اعمال اچھے کیے اس کو ٹھنڈک ملے گی۔ ایک ٹھنڈک دینا، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حوریں نہیں آتی ہیں صرف۔ جی یوکے بھائی، جی میں یہ اب سے کویشچن کروں گا کہ آپ کی نظر میں جنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کی نظر میں جنت کیا ہے؟ میری نظر میں ڈیفینیشن یہ جماعت کے ہے، متعلق سوال کرو، جنت کی ڈیفینیشن چھوڑو، باقی کوئی عالمہ تھوڑی ہے کوئی. دیکھیں نا ناجی صاحب، میری ان کی بات ہو رہی ہے، یا تو پھر وہ یار باجی کوئی عالمہ تھوڑی ہے کوئی جماعت میں کے نے متعلق. اس لیے آپ کو طارق جمیل کی دی ہے کہ طارق جمیل کو بھی نا بہت زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں۔ جس چیز میں آپ کے پاس اتنا نالج نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، آپ جماعت سے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ جلسہ اٹینڈ کر کے آئی ہیں، ماشاءاللہ سے بڑی اچھی تہذیب دیکھی آپ نے، بڑا ڈسپلن دیکھا ہے. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کہا، میرا کویشچن تھا کہ آپ نے کوئی اہل سنت والجماعت کا جلسہ اٹینڈ کیا؟ آپ نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جلسہ کرتے کہ نہیں کرتے. وہ جلسہ نہیں کرتے ہیں، وہ جلسہ نہیں کرتے، وہ جلسہ کوئی نہیں کرتا ہے. نہیں
ان کی تبلیغ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ उनकी तबलीग करने का ये तरीका होता है कि वो बच्चों को जो है वो ब्रेन वॉश करते हैं और उनसे पैसे लेके उनको अलग सिटियों में ले जाते हैं और वहां पर जाके उन्हें कि अल्लाह की राह में अपनी जान दे दो तो वो तुम लोगों को जन्नत मिलेगी। ये उनकी तबलीग का पहलू है। तो इस लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को हलाल किया है कि हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं। तो एक मिनट बाजी, एक मिनट जरा डॉक्टर साहब जी जी, ये मैं जरा यहीं पर यूं सुन रहा हूँ, आप बीच में कंडक्ट करें। ये बाजी से सवाल जी जी। तो ये जो अभी आपने डेफिनेशन बताई है कि आप जिस अहले सुन्नत वल जमात को जानती हैं, बच्चों की ब्रेन वॉश करते हैं, आप उस वाले फिक्र से तलक रखती हैं आप? नहीं, मैं उस में सुन कितने फिरके हैं ये भाई तुम बता दो आप मुझे। आप बताएं ना, मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप कौन से फिक्र से हैं। मैं तो कह रहा हूँ या तो खुद को मुसलमान कहे ना, पर यहाँ पे बैठ के आप हनफी ओके मैं हनफी मुसलमान हूँ। अच्छा, हनफी तबलीग किस तरह से करते हैं? उनकी कभी जलसे पे गई हैं? यार वो लड़की हैं, वो जलसियों में कैसे जाती हैं? आपकी चले जमात में फीमेल नहीं जाती? आप अभी इन्होंने बताया सारी बहनें जाती हैं। नहीं, वो जलसे में गई है ना, जलसा और चीज है यार। आपके जलसे में औरतें नहीं आती हैं? अगर औरतें आए तो बड़ा गरक हो जाए वहां पे। किसने क्या जाती हैं? आपने कभी किसी मुस्लिम फिक्के का जो है जलसा नहीं देखा? नहीं है भाई, नहीं है नादर भाई, नहीं है ही नहीं, जलसे है ही नहीं यार, कहाँ होता है ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तलत भाई ये गलत कह रहे हैं। आदि भाई बताएंगे, सुन तल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। आदि भी अहले सुन्नत से, ये भी अहले सुन्नत से है। अपनी औरतों को जो है वो नहीं जलसों में लेके जाते। ये जब भी कैसी बातें कर रहे हैं यार? आप ऑनलाइन कोई भी जलसा देखते हैं, उस जलसे की बात नहीं कर रहा है, जो इमरान खान के जलसों वाली जलसों की बात नहीं कर रहा मैं इस्लामिक जलसों की बात कर रहा हूँ। खास तौर पे अगर देखा जाए तबलीग करने, औरतों को तबलीग करने का क्या तरीका है अहले सुन्नत वल जमात में? यार मजहबी जलसों में भी जो है भाईजान नहीं जाती औरतें, सिर्फ मर्द जाते हैं। क्या हो गया आपको? कौन से मुल्क में रहते हैं? सिर्फ मर्द जाते हैं और वैसे जलसे होते ही भी नहीं। यार एक मिनट बाजी, औरतों को नहीं जाना चाहिए। एक मिनट अकवाले जनी साहब, आप कौन हो? अपना बताओ भाई, कौन हो आप? जी नादिर भाई, मैं जो है वो देवबंदी था। अब तो मैं जो है वो जब से कुरान हदीस से जुड़ा हूँ तो अब ऐलान बरात कर रहा हूं। चले अब कह रही हो भाई ये देवबंदी है भाई, ये अहमदी नहीं है। मैंने देवबंदियत ये नहीं समझना ये अहमदी है भाई, ये खुद बता रहा है अंदर की बात। मैं भी पहले देवबंदी था, मेरे होते हुए भी कोई जलसे नहीं होते थे भाई। एक मिनट जरा, ये जो मेरे होते हुए भी कोई जलसे नहीं होते थे, ठीक है? अच्छा, जलसों की डेफिनेशन आप लेके जा रहे हैं किसी और से। अच्छा, ये जो रायवंड में तबलीगी इज्तिमा होता है उसको अब जलसा नहीं कहते? जी बाजी, रायवंड का मैंने पहले भी जिक्र किया। रायवंड में इज्तिमा होता है, उसमें कब औरतें आई हैं जनाब? मैंने कब कहा उसमें औरतें आती हैं? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। नहीं, आप एक मेरे से सवाल कर रहे हो ना, मैं एक औरत हूँ, मैं अपना बोलूंगी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि रायवंड को आपने क्या वो एक हज का नाम दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? किसने दिया होगा? आप लोगों ने दिया हुआ। रायवंड नवाज शरीफ ने कहा है कि वहां पर जिसकी इतनी औकात नहीं है कि सही वाला हज कर सके, वो यहाँ पर आके हज करे। मुझे लाज भी दिखाएगा ये वाली। ये नवाज शरीफ कौन होता है इस तरह की स्टेटमेंट देने वाला? उसने जो क्या वो उसके ही तो नवाज शरीफ ने ही है ना, वो बनाया ही तो नवाज शरीफ ने है ना। ऑथेंटिक चीज दिखाए ना, जिसमें किसी ऑथेंटिक बंदे ने कहा हुआ, जिसकी बात करना जो है ना वो मायने रखता है। यार एक बंदे ने एक अपनी जगह बनाई है। अच्छा, एक बंदे ने अपना घर बनाया और वो कहता है कि यहाँ पर मैं घर में रहता हूँ और ये घर जो है इस काम के लिए मखसूस है। अब वो नवाज शरीफ ने बनाया है। नवाज शरीफ ने ये कहा है कि जिस बंदे की इतनी वो ना हो कि हाँ उसके पास पैसे ज्यादा ना हो, वो हज ना कर सके, तो यहाँ पर आके हज करे। वो रायवंड उसने ही बनाया हुआ है। नहीं, रायवंड इज्तिमा उसने बनाया हुआ है। जी बनाया हुआ। आप ये कहना चाह रही हैं कि रायवंड में जो इज्तिमा होता है वो नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी होता है, वो उसका सारा कुछ करता है। ये लो, ये बात को ना दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। रायवंड जो जगह है ना, आप क्या कह रहे हैं? ये रायवंड की जगह जो है ना मखसूस की हुई है। वो मैं मान गया कि रायवंड का जो गायबाना हज के नाम से वो नवाज शरीफ ने मखसूस करके दी हुई है कि ये गायबाना हज है।
मेरी प्यारी बहना आप पता क्या देखें, आप कुछ चीजें ऐसी कह रही हैं जो कि नॉर्मली आपको खुद नहीं पता कि आपने कहाँ से सुनी है और बगैर सोचे समझे कह जा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बाजी थोड़ा सा सही कह रही हैं। आप देखिए S74 साहब की थोड़ी सुने जी। S74 साहब मुझे ना लफ्ज़ समझ नहीं आ रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा था। ये नीचे यूजर ये 4-2 है, वहाँ पर एक बहिश्ती दरवाजा बनाया गया है। बहिश्ती दरवाजा, हाँ बहिश्ती दरवाजा, मुझे ये लफ्ज़ आ नहीं रहा था। वो जो रायबन की बात कर रही हैं बाजी, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। नवाज शरीफ ने नहीं बोला, लेकिन लोग जो जहाँ जाते हैं उन्होंने कहा हुआ है, मौलवियों ने, यहाँ पर हज का दर्जा दिया जाता है। हाँ ये वहाँ से जाने वाले लोगों का अकीदा है। वहाँ पर हर साल होता है, हर साल होता है, और बहिश्ती दरवाजा खोला जाता है और वहाँ से लोग गुजरते हैं। S74 भाई आप किसने कहा तारुफ करा दें। ये मैं बिल्कुल न्याज़ ठोकर पे रहता हूँ, समझ गए ना, ये लोग समझ गए होंगे। वहाँ पर लोग जो जाते हैं उनका ये अकीदा है कि वहाँ पर एक उनका हज का दर्जा दिया जाता है। कौन कहते हैं, कौन लोग कहते हैं? सही कह रहे हैं, सब कहते हैं। जो उधर बसों पे जाते हैं, आप जाके देखें जो उन्होंने बिस्तरे उठाए होते हैं भाई, आप वहाँ जाके किसी का इंटरव्यू ले ना, वो कहते हैं हम हज करने जा रहे हैं जी। यूके स्टूडेंट मुझे लगता है कि आप बड़े दर्जा उतना होता है यहाँ पे आने यूके का। में चले गए हैं और आपको ये पता नहीं है कि वहाँ पर बहिश्ती दरवाजा बनाया हुआ है। आप जाएं वहाँ पे, जब वो बसों पे लोग लटके होते हैं ना, उनसे जाके पूछें, वो आपको बताएंगे। अरे S74 भाई मेरी भी सुन लेना एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ आप इज्तिमा पे गए हैं कभी? मैं कहता हूँ कि मैं एक नहीं खनी, मैं 70-100 दफा गया। मैं आपको कहता हूँ मैं वहाँ रहता हूँ। और वो लोग वो कहते हैं कि हम लोग हज पे आए हुए हैं सारे। वो लोग दूर दूर से आते हैं ना, इधर उधर से आते हैं, वो यही कहते हैं कि यहाँ पर हज जितना सवाब मिलता है जितना हज पे मिलता है। तोबा तोबा तोबा। शुक्र है मेरी बात की किसी ने वो ये आप कर बात दिया कि माने। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। एक और बंदा ये नवाज शरीफ नहीं कहता, नवाज शरीफ का नाम ना आप लें। सर मेरी बात, नवाज शरीफ का नाम ना लें भाई, नवाज शरीफ नवाज शरीफ का नाम ना लें, ये लोगों का अकीदा है। मैंने यही सुना था कि उन्होंने वो बनवाई ये जगह। नहीं, नवाज शरीफ रायबरेली में रहता है, इसलिए लोग ज्यादातर कहते हैं आसिफ साहब आप उसका महल वहाँ पे है। एक मिनट जी। हेलो नहीं अलाउ आसिफ साहब आप भी तारुफ करा दें अपना। जी मैं सियालकोट से बोल रहा हूँ। अहले सुन्नत वल जमात? हाँ जी अहले सुन्नत। ये हज करके आए हैं कभी आप जहाँ पे ये बता रहे हैं मिनी हज? नहीं हज तो नहीं होता वहाँ पे। ये ऊपर ठोकर वाले भाई तो कह रहे होता है। मैं कहता हूँ कि लोगों का अकीदा है, लोग कहते हैं, हर आदमी का नहीं, लोग वहाँ पर ज्यादातर इसीलिए जाते हैं कि जहाँ पर हमें वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं है, हमारा यहाँ पर उतने स्वाब में मिल जाता है। इसको नहीं पता, ये इसको पता नहीं है। मैं कहता हूँ मैं उन बसों में जड़ के उधर सफर किया हुआ है, उधर जो लोग जाते हैं उनसे इंटरव्यू लिया हुआ है, उनसे बातें सुनी हुई, उन महफिल में बैठा हूँ। ये दो बातें ना करे, इंटरव्यू लिया हुआ है या बातें सुनी हुई है? मैंने उन महफिल में इंटरव्यू का क्या मतलब होता है यार? मैं खुद इस इज्तिमा में गया हूँ, मैंने वहाँ पे किसी से नहीं सुना। इसके अलावा तलत भाई आप कहाँ गए मुझे बताया, आपने कहा रायबंड, कौन सी जगह पे गए आप? मैं रायबंड बहुत सी जगह जानता हूँ, किसी का भी नाम ले मैं आपको बताता हूँ, चौक का नाम बताता हूँ सारे। कहाँ से रोड जाता है रायबंड को? रायबंड ये जो सीधी जाती है ठोकर न्याज बेग स्ट्रेट वे जो जाती है उमरे की तरफ जी। तो जो लोग दूर दूर से आते हैं वो नहीं कहते ये भाई मेरे बात आप बताता हूँ, ये लोगों का अकीदा है। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों नहीं मानते भाई? क्या कह रही हैं? देखे उन्होंने अभी अपने मुंह से बोला कि जहाँ से लोग जाते हैं उम्र आ जाते हैं। लोग तो इतना कुछ कर रहे हैं वहाँ पाकिस्तान में, आप देखे तो सही क्या कुछ हो रहा है, क्यों नहीं आप मानते यार? उसका नाम है, आप इसको किस तरफ लेके जा रही है? एक मिनट आपके अकीदे के मुताबिक नहीं होगा। मैं नवाज शरीफ रहता है, उसका नाम है क्या? आप नहीं, नवाज शरीफ नहीं कहता, नवाज यार एक मिनट 74 भाई ऐसी चीज बनाई 74 भाई एक मिनट जरा, आप कौन हो? आप कादियानी हो? कौन हो भाई? मुसलमान हो? कौन हो यार? छोड़े आप, मैं वैसे अहमदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तो बात ही ना करें यार, आपका तो बहस ही नहीं यहाँ पे बनती, आप खुद से हमें बीच में मैंने बताना नहीं, मैंने बहस क्यों नहीं मानती, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। आप क्यों नहीं यार मानते? आप पहले जो बंदी था ये इनसे पूछ लेते हैं। ठीक है 74 भाई आपको रोजा होता है, उसके बाद आपस में आपने कहा आपका आ गया व्यू ना, जज़ाकल्लाह। 74 भाई जुमेरात को जो है वो जलसा होता है और उसके बाद जो है साल बाद भी होता है जी।
वो साल बाद जो बिल्कुल होता है ठीक वो कह रहे वही हैं होता जी, है। बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं। कि वहाँ पे हज होता है, उसको सर, इतनी अहमियत दी जाती कोई है सर। अहमदी भाई ना आए अभी फिलहाल। हेलो हेलो। जी जी हेलो। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सब कुछ बोल रहे हैं इनको खुद पता नहीं है। एक कह रही है कि वहाँ बिश्ती जेवर है, बिश्ती दरवाज़ा है, वो तो लाहौर में है, रायवेंड में नहीं है। वो इनको खुद पता नहीं है, ये खुद अपने से कुछ गेस करके ना बता रहे हैं। अच्छा बहिश्ती दरवाजा भी हो सकता है? वहाँ मेरी बात सुनो, वहाँ हज नहीं होता, वहाँ ये बोला जाता है कि हज के बाद बड़ा इज्तिमा होता है। यानी कि हज जितना जो इज्तिमा यानी जितना मजमा क्यों हज जी में बाजी, होता वो है, कह रहे हैं आज के बाद इज्तिमा होता है बाजी। हज के बाद इज्तिमा नहीं होता। मैं ये नहीं बोला मैंने। ये ना मैंने कहा देखिए, हेलो, देखो मेरी बात सुने आसिफ जी। आप बात को गलत ले रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हज जी, के बाद एक इज्तिमा होता है। सेकंड, मैं आसिफ जी मेरी बात सुनो पहले। मैंने कह रहा हूँ कि जितना मजमा हज पे होता है उसके दूसरे नंबर पे मजमा इधर जमा होता है। ये नहीं कहा कि हज के बाद मजमा, ये दूसरे नंबर पे मजमा होता है। जितना मजमा हज पे होता है उससे कम दर्जे पे यानी कि कम मजमा होता है, लोग कम लोग होते हैं, दूसरे नंबर पे होते हैं। ये नहीं होता कि वहाँ हज होता है, हज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे। जी बेलबतौड़ी साहब, वहाँ मैं आपको भाई बता रही हूँ ना कि ये वो कहते हैं कि हज जिसकी साहिब हैसियत नहीं है जो हज कर सकता है वो वहां पर जाता है। बहिश्ती दरवाजा है वहां पर, नहीं बिश्ती दरवाजा नहीं है वहाँ पे, वो लाहौर में दाता दरबार पे है, वो वहाँ पे नहीं है। आपको नहीं पता नहीं। और दूसरा वहां पर हज जितना सवाब मिलता है और ये वहाँ आपको किसने बोला है? आप जाके आपको किसने बोला? मैं सुननी हूँ, हमें कब से ये कहाँ से सुनती हो? हमें भी तो पता चले ना कहाँ से सुनती हैं आप। मेरे भाई ने एक दफा पूरा बोरिया बिस्तरा बांध के कि मैं जी हज करने जा रहा हूँ। अम्मी ने पूछा किधर जा रहे हैं तो वो कहता है कि मैं रायवेंड जा रहा हूँ हज करने। आपके भाई का हज होता होगा वहाँ पे, बाकी किसी का नहीं होता। आपके भाई का होता होगा हज। तो तब से ये हज ही मैंने फिर उसके बाद सर्च भी मारी है कि वाकई ये कहते हैं कि हज जितना सवाब मिलता है वहां जाने से। ये बात है। यार इस बात को छोड़ दें, इस बात पे उनसे बहस ना करें।